Hello everyone, today we are going to learn about another topic in set theory. In previous classes we had learned introduction of set and types of set, definition of subset, closed interval and open interval. Today's class we will learn about definition of power set. So the collection of all subset of a set is called power set. Suppose that we have a set A and we will find out all subset of a set A, and the collection of all subset of set A is called power set, and we denoted power set is PA. Okay, through the example we can understand easily. Set A is equal to 1 and 2. It is clear? The element of set A is 2 and the total possible subset will be 2 to the power n. It is clear? N is equal to 2 because in set A 2 element present, 2 to the power 2 is equal to 4. The total subset will be 4. First is 1, 2, 1, 2 and 5. 5 is subset of every set. Okay? And the collection of all subset is called power set. The collection of all subset is called power set, PA. It is clear? Another example is A equal to 1, 2 and 3. सेट A में 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं. ठीक है, टोटल सबसेट क्या होंगे 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8. सो फर्स्ट 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 and 1, 2, 3 and 5 because 5 is subset of every set. The collection of total 8 subset is called power set. It is clear? Okay. Next one is universal set. A set which has element of all the related sets without any repetition of element. यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें अदर सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी रिपीटिशन की. इट इज़ क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन 3 सेट A, B एंड C. ठीक है, एंड वी विल फाइंड आउट यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट करते हैं. U इज इक्वल टू सेट A के एलिमेंट है 1, 2, 3. 1, 2 एंड 3. लेकिन 1, 2 एंड 3 यदि B एंड C में प्रेजेंट होंगे तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे. इट इज़ क्लियर? सेट B के एलिमेंट है 1, 2, A, B, C. लेकिन 1, 2 सेट U में पहले से प्रेजेंट है तो 1, 2 को हम रिपीट नहीं करेंगे. A, B एंड C आएगा. एंड सेट C में 1, A एंड 5 एलिमेंट हैं लेकिन 1 एंड A पहले से प्रेजेंट है तो ओनली 5 आएगा. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल सेट? 1, 2, 3 A, B, C एंड 5. मतलब जो सेट A, B एंड C में कॉमन होगा हम उसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे उसको लिखेंगे. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. सो यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1, 2, 3 A, B, C एंड 5. नेक्स्ट वन है ऑपरेशन ऑन सेट्स. यूनियन ऑफ सेट. द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both. So how we will find out the value of A union B? A union B means जो एलिमेंट या तो A में प्रेजेंट हो या तो B में प्रेजेंट हो या फिर दोनों में प्रेजेंट हो. ठीक है, तो वहाँ से हमें A यूनियन B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. सो A यूनियन B इज इक्वल टू X इज दैट X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B. You can easily understand through the example. So A equal to 2, 4, 6, 8 and B is equal to 6, 8, 10 and 12. ठीक है,
So A union B. What is the value of A union B? A union B में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो तो ओनली वन टाइम आएंगे, ठीक है, एंड जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो सारे आएंगे। तो वहाँ से हमें A यूनियन B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो A यूनियन B 2 4 6 दोनों में कॉमन है तो ओनली वन टाइम आएगा। 8 दोनों में कॉमन है तो वन टाइम आएगा, ठीक है। फिर रिमेनिंग एलिमेंट क्या है? 10 और 12, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A यूनियन B. It is clear? Another example is x is equal to 2, 6, 9, 5 and 1, and y is equal to 1, 2, 6, 8, 5. It is clear? So what is the value of x union y? Is equal to, इनमें जो कॉमन एलिमेंट होगा ओनली वन टाइम आएगा एंड जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो सारे आएंगे, ठीक है। 2 दोनों में कॉमन है तो ओनली वन टाइम आएगा। 6 दोनों में कॉमन है, वन टाइम आएगा। 9 5 दोनों में कॉमन है, वन टाइम आएगा। 1 वन टाइम है, ठीक है। एंड सेट y में वन एलिमेंट रिमेनिंग है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट आगे 2, 6, 9, 5, 1 and 8 and 1. It is clear? And next one is intersection of sets. The intersection of two set A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. ठीक है, A intersection B is equal to x such that x belong to A and x belong to B. A intersection B means if we have two set A and B, ठीक है, जो उन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होगा वो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 8, B इज इक्वल टू 6, 8, 10 एंड 12। इन दोनों एलिमेंट में कॉमन एलिमेंट क्या होगा? 6 एंड 6 प्रेजेंट है दोनों में, 8 एंड 8 दोनों में प्रेजेंट है, तो 6 एंड 8 क्या हो जाएगी? A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इट इज क्लियर? नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ठीक है। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ठीक है। यदि हमारे पास दो सेट हैं, हम उनमें A यूनियन B का ऑपरेशन लगाएंगे और B यूनियन A ऑपरेशन लगाएंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। एसोसिएटिव लॉ, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। यदि हम इसमें 3 सेट लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट हम A यूनियन B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन हम A यूनियन B की वैल्यू सेट C के साथ उसका यूनियन करेंगे तो A यूनियन B यूनियन C के इक्वल होगा। आइडेंटिटी, A यूनियन फाई इज इक्वल टू A और फाई इज द आइडेंटिटी। आइडेम्पोटेंट लॉ, A यूनियन A इज इक्वल टू A, ठीक है। यदि हम किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो वही सेट हमें प्राप्त होगा। लॉ ऑफ यूनियन, U यूनियन A इज इक्वल टू U। इट इज क्लियर? नेक्स्ट वन है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। कॉम्यूटेटिव लॉ, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। एसोसिएटिव लॉ, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B intersection C. Law of phi and U, phi intersection A is equal to phi and U intersection A is equal to A. A intersection A is equal to A idempotent law hold करता है intersection में। and distributive law, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. It is clear? Okay. Next है Venn diagram. Most of the relationship between set can be represented by means of Venn diagram which are known as Venn diagram. ठीक है, किसी दो सेट के बीच में रिलेशनशिप को
रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। इट इज़ क्लियर? द डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल। ठीक है। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट यूजुअली बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल होता है, ठीक है, और स्कूल में स्टूडेंट होते हैं। ठीक है। जो स्कूल है वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, एंड जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो गए हैं। तो स्कूल को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो स्टूडेंट हैं उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट इज सबसेट ऑफ स्कूल। इट इज क्लियर? अदर एग्जाम्पल इज यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 एंड ए है 2 4 6 8 एंड 10। ए के सारे एलिमेंट यू में प्रेजेंट हैं, इट मीन्स ए सबसेट होगा यू का। ठीक है। अब हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 to 10। इट इज़ क्लियर? अब सेट ए में कितने एलिमेंट हैं उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है। तो ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है ए यूनियन बी। ठीक है। ए यूनियन बी में रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट हो गया एंड सेट ए और सेट बी। ठीक है। ए यूनियन बी में जो सेट ए एंड सेट बी में जो सारे एलिमेंट हैं वो ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी वहाँ से। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में सेट ए एंड सेट बी में जो कॉमन पार्ट होगा, ये सेट ए है सेट बी है, इसमें जो कॉमन पार्ट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। Difference of two sets. Difference of two set A and B is the set of element which belong to A but not B. Symbolically, we write A minus B and B minus A. ठीक है। What is the value of A minus B? ठीक है। A minus B means जो सेट A के एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट ना हो, ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। एंड सेट बी में जो सेट बी के सारे एलिमेंट हैं, इनमें से जो एलिमेंट सेट बी ए में प्रेजेंट ना हो वो बी माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी। थ्रू द एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 एंड 8। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट ए माइनस बी। अब आपने सेट ए में देखना है कि सेट ए के कौन से एलिमेंट है जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, वही ए माइनस बी की वैल्यू होगी। ठीक है। सेट ए के एलिमेंट को देखेंगे आप, 1 सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स 1 इंक्लूड होगा इसमें। 2 सेट बी में प्रेजेंट है, वो नहीं आएगा। 3 सेट ए माइनस बी में आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा एंड 6 दोनों में प्रेजेंट है। या फिर हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी मीन्स जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट जो सेट ए में रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 3 एंड 5। सिमिलरली हम बी माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, बी माइनस ए। बी माइनस ए मीन्स सेट बी के एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, जो प्रेजेंट होंगे उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो सेट बी के एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो सेट बी के एलिमेंट को देखेंगे हम, 2 ए में प्रेजेंट है, नहीं आएगा। 4 ए में प्रेजेंट है, नहीं आएगा। 6 ए में प्रेजेंट है, नहीं आएगा। लेकिन 8 ए में प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स बी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। इट इज़ क्लियर? सो ए माइनस बी 1 3 5 1 3 5 बिलोंग टू ए बट नॉट बी।
इट इज़ क्लियर. एंड b माइनस a 8. नोट है a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस a. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन सेट. ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू कभी भी b माइनस a के इक्वल नहीं होगी. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. लेट u be the universal set and a subset of u. Then the complement of a is the set of all element of u which are not the element of a. Let u be the universal set and a is a subset of u. मीन्स जो a के एलिमेंट हैं वो u में प्रेजेंट होंगे, इसलिए a सबसेट है u का. एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज इक्वल टू जो यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो a में प्रेजेंट ना हो. ठीक है, यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो a में प्रेजेंट ना हो, तो हम इसको u माइनस a से डिनोट करेंगे. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट a इज इक्वल टू u माइनस a. सो वी राइट कॉम्प्लीमेंट a टू बी डिनोटेड द a डैश with respect to u. It is clear? A complement is equal to x such that x belong to u and x does not belong to a. Means वे एलिमेंट जो u में बिलोंग करते हैं लेकिन a में बिलोंग ना करते हो, वो a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी. तो हम इसको a डैश इक्वल टू u माइनस a से फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, u इज़ द यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 up to so on 10 and a is 1 3 5 7 and 9. तो हमें a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a. u माइनस a मीन्स आपको यूनिवर्सल सेट में देखना है जो एलिमेंट u में हैं लेकिन a में प्रेजेंट ना हो. ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी 1 a में प्रेजेंट है, 1 नहीं आएगा. 2 a में प्रेजेंट नहीं है, 4 a में प्रेजेंट नहीं है, 6 a में प्रेजेंट नहीं है और 8 और 10 a में प्रेजेंट नहीं है. मीन्स जो एलिमेंट a में प्रेजेंट ना हो वो a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी. नोट, इफ a इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट u देन इट्स कॉम्प्लीमेंट a डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ u. ठीक है, कोई सेट a है वो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, लेकिन जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट a इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ठीक है, a सबसेट है u का और जो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले ये सारे एलिमेंट भी u में एग्जिस्ट करते हैं. इट मीन्स a कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ u. इट इज़ क्लियर? सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट. फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ. a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u यूनिवर्सल सेट. ठीक है, यदि हमारे पास कोई सेट a दे रखा है, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा. a इंटरसेक्शन a डैश इज इक्वल टू 5. डी मॉर्गन्स लॉ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. डी मॉर्गन्स लॉ में यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होता है और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होता है. ठीक है, सेकंड है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो ये यूनियन में चेंज हो गया है. लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a. इट इज क्लियर? लॉ ऑफ empty set and universal set. Complement of phi is equal to universal set and universal set is equal to complement of phi. It is clear? So if we summarize today's class, so we have learned power set and properties of set, union of set, intersection of set, and Venn diagram, how we can represent set through the Venn diagram, and difference of set, complement of set, and properties of complement of set.
So that's all about the set. In upcoming video we will solve some more important question on this topic. So thank you and have a nice day.